different concepts, interrelated but different concepts, method of induction and binomial theorem. Now let us first see what is method of induction. Now we have already solved some questions based upon this in the chapter matrices. Matrices मध्ये आपण ते काढलेलं होतं. Prove that a raised to n equal to for all n belongs to n. ठीक. So any property or statements which holds true for all the natural numbers. All the natural numbers is denoted by, let us say, p of n. वेगवेगळे आपण फॉर्म्युले त्या ठिकाणी बघितलेले होते. सम ऑफ नॅचरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ नॅचरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नॅचरल नंबर्स. So all these are what? These are properties related to natural numbers, or what we can say, these are statements related to natural numbers. So principle of mathematical induction suggests what? What is basically principle of mathematical induction? So let P of n be a statement involving the natural number n such that, and this statement P of n is such that P of 1 is true. P of 1 is true. That is, P of n is true for n is equal to 1. So taking value of n as 1, P of 1 is true. And second thing, P of k plus 1 is true whenever P of k is true. So if we are assuming P of k is true, then P of k plus 1 is also true. Then in that case, P of n is true for all natural numbers, for all n belongs to n. So this is the principle of mathematical induction. Now how to solve problems based upon this? So there is certain working rule. There are 4 steps. First step is foundation. Means what? Here you have to denote the statement stating the property by P of n. So first of all, you will denote the statement by P of n, and you will verify that P of 1 is true. So you have to verify that P of 1 is true. How we can find out P of 1? By putting n is equal to 1. Second thing, assumption. We have to assume that P of k is true. Okay? And we have to write the result for P of k. Using P of n, we assume that P of k is true, and we have to write the result for P of k. That is the second step, which is for assumption. Third step is succession. Since we have already assumed P of k is true, अब P of k अगर ट्रू होगा तो हमें क्या प्रूव करना है अभी कि P of k plus 1 भी ट्रू होगा. P of k अगर ट्रू होगा तो P of k plus 1 भी ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करना है. So in succession we have to prove that P of k plus 1 is true when P of k is true. ठीक, जो कि हमने अज्यूम किया है. P of k अगर ट्रू होगा तो P of k plus 1 भी ट्रू होना चाहिए. That we have to prove. और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि P of k plus 1 भी ट्रू है, तो then by using principle of mathematical induction we can say that P of n is true for all n belongs to n. Clear? So first of all हमें करना क्या है? हमें P of 1 ट्रू है ये प्रूव करना है. फिर हमें P of k को एज्यूम करना है. अब P of 1 हमने प्रूव कर दिया, मैंने डिस्कस किया था हमने मैट्रिसेस में. फिर एक बार रिपीट करता हूं. P of 1 हमने प्रूव कर दिया. ठीक, फिर हम क्या करते हैं? P of k ट्रू है ऐसा एज्यूम करते हैं और हम ये प्रूव करते हैं कि P of k plus 1 is also true. तो अब इसका जो इम्प्लीकेशन है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज दैट P of n is true for all n belongs to n. ये इम्प्लीकेशन बेसिकली आता कैसे है? हमने प्रूव तो कर दिया P of 1 ट्रू है. ठीक, फिर हमने इन जनरल P of k को ट्रू एज्यूम किया. P of k plus 1 भी ट्रू आ गया. अब इससे क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जब k की वैल्यू 1 होगी, तो आपका क्या हो जाएगा? P of 1 ट्रू हो गया और P of 2 भी ट्रू हो जाएगा. P of 1 ट्रू तो है ही, आपके पास मालूम है, आपने एज्यूम किया था. यहाँ पे आपने एज्यूम किया है
बट जब मैं के की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो मुझे मालूम है कि ये तो ट्रू है, मैंने पहले प्रूव किया है, पी ऑफ 1 इज ट्रू। अब इस यूजिंग पी ऑफ के प्लस 1 वी कैन आल्सो से दैट पी ऑफ के 2 इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अगली स्टेप में इंडक्शन, ठीक है, सक्सेशन होगा। अगली स्टेप में क्या होगा, पी ऑफ 2 ट्रू, पी ऑफ 3 भी ट्रू, फिर पी ऑफ 3 ट्रू, पी ऑफ 4 भी ट्रू। तो k और k प्लस 1 से 1 2 2 3, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा। इट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। So basically that is the concept in solving problem based upon mathematical induction. Clear up to this? So we can start with the exercise. So let us start with the exercise 4.1. So I am taking some sample questions. All the questions are same. ठीक है, all the questions are same. उसका पैटर्न सेम है, बस हमें सिंप्लीफाई करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है कि द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ऑल द नेचुरल नंबर। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, अभी एक्सरसाइज आपके सामने होगा, टेक्स्ट बुक आप ओपन करिए, फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप एक शॉर्टकट के तौर पर लर्न भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में किया भी है। Sum of first year natural numbers, sum of squares of first year natural numbers, and we have proved these questions using sequence and series in last chapter. But here we have to prove them using mathematical induction. Okay. So let us start one by one. I am taking third question. The question is 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on up to n square is equal to n plus 1 to n plus 1 upon 6. So do you remember this formula? This is the formula for sum of squares of first year natural numbers. And now we have to prove this using mathematical induction. So first exercise complete is prove that by mathematical induction. Okay, so now let us start with this. So first of all, we have to assume P of n. So let P of n is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. And which is equal to how much? n plus 1 to n plus 1 upon 6 for all n belongs to n. So this is now P of n. This is LHS and this is RHS. We have to prove that LHS is equal to RHS for all natural numbers. Okay. Now first step. First step, putting n is equal to 1. Putting n is equal to 1. LHS क्या हो जाएगा आपका? LHS will become only n is equal to 1 means we are taking only one term. That is we are taking only first term. So it is how much? 1 square, which is equal to 1. And RHS equal to what? RHS is this. Value of n is 1. Here n plus 1. So 1 plus 1. 2n plus 1. 2 into 1, that is 2 plus 1 upon 6. So this is nothing but 1 plus 1, 2 into 3. 6 upon 6, which is equal to 1. ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने n की वैल्यू 1 लिया तो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आई। ठीक, तो अब लिखते हैं देयरफॉर LHS RHS। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड हेंस P of n is true for n is equal to 1.
तो हमने प्रूव कर दिया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है। अब स्टेप सेकंड में हम एज्यूम करते हैं। सो स्टेप सेकंड, assume p of n is true for n is equal to k. Assume p of n is true for n is equal to k. That is अब p of n अगर n is equal to k के लिए ट्रू है तो LHS क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो n की जगह पर हमें क्या लेना है, k। सो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। LHS में हमने n की वैल्यू ले लिया k एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू, in RHS also we have to put n is equal to k. So this is n plus 1 to n plus 1. So it will become k plus 1, 2k plus 1 upon 6. And this we assume as first equation. Now in step third, we have to prove that p of n is true for n is equal to k plus 1. In step second, we have assumed p of n is true for n is equal to k, and now we have to prove that p of n is true for n is equal to k plus 1. So we will find out LHS of this and RHS of this. तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव दैट LHS क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू व्हाट, अप टू n स्क्वायर होगा क्या, नहीं, n की वैल्यू हमने क्या लिया अभी, n इज रिप्लेस बाय व्हाट, k प्लस 1। तो यहां पर हो जाएगा k प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया LHS। RHS में n की जगह पर क्या लेना है आपको, k प्लस 1। तो यहाँ पर n इधर हो जाएगा k प्लस 1, फिर n प्लस 1 मतलब k प्लस 1 प्लस 1 and multiplied by 2n plus 1. So again this is multiplied by 2n, means 2 into k plus 1 plus 1 whole divided by 6. So this is equal to how much? अब ये LHS तो हमारे पास है, हमें RHS का सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पे कि RHS सिंप्लीफाइड क्या होनी चाहिए, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। हमने लिखा है दैट इज टू प्रूव दैट, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में k प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2, थर्ड ब्रैकेट में 2 इंटू k 2k, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 whole divided by 6. So this we have to prove now. अब ये हमें प्रूव करना है। अब इसका हम LHS लेंगे और RHS का आंसर इतना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट विद LHS। ये LHS इक्वल, what is LHS, 1 square 2 square up to k plus 1 square. So 1 square 2 square 3 square up to k plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर। हर एग्जाम्पल में यही प्रोसेस है, प्रोसेस ध्यान में समझिए, थोड़ा सा घुमा फिरा के है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, इस टाइप वाले कुछ स्टेटमेंट आते हैं। पर हर स्टेटमेंट का मीनिंग अच्छे से आपने समझना है कि दिस वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। वी हैव फर्स्ट स्टेप वी हैव प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हमने एज्यूम किया it is true for n is equal to k. Again we have to prove that this is true for n is equal to k plus 1.
अब k+1 के लिए ये रिजल्ट आपका प्रूव होना चाहिए, तो LHS मैंने लिख लिया, RHS का आंसर ये वाला आना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक, अब इसके आगे ठीक से ध्यान दीजिएगा, शायद हमारा टाइम क्लोज हो जाएगा, कितने मिनट्स में देख लीजिए, फिर मैं ये बीच में रुक जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक, तो प्रोसेस ठीक से समझिए, क्योंकि सेम प्रोसेस रिपीट होना है हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। इसके आगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चेंज होता है, सिंप्लीफिकेशन है आगे लास्ट में जाके, बट ये यहाँ पर जो 1 2 3 स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहेंगे आपके हर क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब हम क्या करते हैं, दिस इज व्हाट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k+1 स्क्वायर। ठीक, तो मैं इसे लिखूंगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो नंबर क्या हो रहा है, एक एक से नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियसली जो लास्ट टर्म है k+1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसके पहले वाली टर्म k+1 के पहले की टर्म वो कौन सी होगी, इट विल बी k और उसका स्क्वायर, और फिर लास्ट में k+1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, k+1 ब्रैकेट स्क्वायर तो है ही, लेकिन इसके पहले कौन होगा, k, उसके पहले कौन होगा, k-1, उसके पहले k-2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये जो रिजल्ट है आपके पास है, दिस रिजल्ट, दिस इज व्हाट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। इक्वेशन 1 में अगर आप देखेंगे, सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इज दिस मच फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हिच वी हैव अज्यूम्ड इट एज ट्रू। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो होल्ड करता है। सो यू कैन रिप्लेस दिस 1 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर बाय दिस फार्मूला, व्हिच इज नथिंग बट k+1 2k+1 अपॉन 6। ठीक है, हमने ले लिया फर्स्ट से, एंड प्लस आगे जो है वो है k+1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है जहां से हमने स्टार्ट किया और इस वाले स्टेप तक फ्रॉम फर्स्ट तक, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न रहेगा, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न चलेगा। ठीक, अब इसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, और ये रिजल्ट हमको कहां पर लाना है, हमें यहां पर लाना है। ये जो रिजल्ट सिंप्लीफाई करेंगे, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए दो टर्म्स है, ठीक है, देयर आर टू टर्म्स, इन बोथ द टर्म्स k+1 इज कॉमन, k+1 कॉमन है तो हमने k+1 कॉमन ले लिया। फिर जो डिनोमिनेटर में 6 है उसे भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट में क्या बचा, देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा फर्स्ट, इसमें दिस इज k एंड दिस इज 2k+1, प्लस हो जाएगा 6, हमने एलसीएम लेकर कॉमन लिया है बाहर, तो यहां पर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, और k+1 का स्क्वायर था, हमने k+1 बाहर लिया है, तो इधर बच जाएगा आपका k+1। जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है उसके ऊपर आप नजर रखिए। देखिए हमें ये प्रूव करना है k+1 अपॉन 6, तो मैंने रेडी हो गया k+1 अपॉन 6। अब ये दोनों ब्रैकेट आ गए, k+1 अपॉन 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, k इंटू 2k स्क्वायर प्लस k इंटू 1k प्लस 6k प्लस 6 1 जा 6, दिस इज नथिंग बट k+1 अपॉन 6 2k square plus, now this is what 7k plus 6। ठीक, अब ये हो गया क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक। आप इसे रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं,
फेयर में भी करना है तो फेयर में भी करेंगे, तो बाजू में करेंगे आप, इधर आप फेयर में भी कर सकते हैं इसे सॉल्व। 2k² + 7k + 6, 6 2 12, ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम 7 होनी चाहिए। 4 3 12, 4 + 3 7, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2k² + 4k + 3k + 6, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, 2k कॉमन हुआ, k + 2, 3 कॉमन हुआ, k + 2, यहाँ पर आ गया k + 2, 2k + 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप साइड में कर सकते हैं या फिर रफ में भी कर सकते हैं, ठीक। एंड देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में k + 1 है और इसके फैक्टर से क्या फैक्टर आए, k + 2, 2k + 3। डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पर 6 है, डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप चेक करिए, कंपेयर करिए इसके साथ, k + 1, k + 2, 2k + 3, k + 1, k + 2, 2k + 3 अपॉन 6। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो स्टेप थर्ड में हमें ये प्रूव करना होता है कि P of k + 1 is true. It means LHS is equal to RHS. स्टेप 4 में हम लिखेंगे, स्टेप 4, using principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to n. ठीक। एक स्टेप थर्ड में आप एक लिख दीजिएगा यहाँ पर, therefore, therefore, ठीक है। सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आपको बस यहाँ पर क्वेश्चंस डालते जाने हैं, सिंप्लीफाई करना है, एंड दिस इज समवॉट व्हाट यू कैन से एज ब्लूप्रिंट फॉर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 6, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus and so on up to n into n plus 1 is equal to, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, चलिए टर्म में लिखता ही नहीं हूं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, n into n plus 1 is equal to n/3 n plus 1 n plus 2, ठीक। तो जैसे मैंने बताया, ये जो भी जितने भी सारे क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस में, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो अगर आपको कोई पूछे कि 1 into 2 plus 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, ठीक है, कहाँ तक, n into n plus 1 तक, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, n/3 n plus 1 n plus 2। ओके, सो first of all, let P of n equal to what, 1 into 2, 2 into 3 up to n into n plus 1, and this should be equal to RHS, that is n/3 into n plus 1 into n plus 2. First step, putting n is equal to 1, LHS equal to what? Now when you are taking n is equal to 1, it means you are taking only first term, and first term is 1 into 2. So LHS becomes 1 into 2, which is equal to 2. What is RHS? n/3, that is 1/3, because n की जगह पर हमें क्या लेना है, 1 लेना है, फिर उधर होगा n plus 1, मतलब 1 plus 1, इधर हो जाएगा 1 plus 2. This comes out to be 2 into 3, that is 6 upon 3, which is equal to 2. LHS इक्वल टू RHS है, P of n ट्रू है और n इज इक्वल टू 1, ठीक। स्टेप सेकंड में we have to assume that
P of n is true for n is equal to k. That is, अब n की जगह पर हम k ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 into 2 plus 2 into 3 plus and so on up to k into k plus 1 is equal to what? n by 3. यहाँ पर हो जाएगा k by 3 in bracket n plus 1 n plus 2, मतलब k plus 1 k plus 2. And now this is your first result, which we have assumed to be true. Step third, we have to prove that P of n is true for all n or for n is equal to k plus 1. It means what? That is, to prove that 1 into 2 plus 2 into 3, ऐसे कहाँ तक? तो n की वैल्यू क्या लेनी है आपको? k plus 1. तो यहाँ पर n plus 1. तो n की जगह पर देखिए दिस इज n विच विल बी रिप्लेस बाय k plus 1. तो यहाँ पर हो जाएगा k plus 1 एंड दिस इज n plus 1, मतलब k plus 1 plus 1 विच इज नथिंग बट k plus 2. एंड दिस शुड बी इक्वल टू RHS क्या होनी चाहिए? RHS में n की जगह पर आपको k plus 1 लेना है. यहाँ पर n upon 3 है, तो ये हो जाएगा k plus 1 upon 3. n plus 1 मतलब k plus 1 plus 1. n plus 2 मतलब k plus 1 plus 2. हर एक जगह पर जहां जहां पर n है हमने क्या लिया है? k plus 1. So what is the result? न्यूमरेटर में देखिए k plus 1, यहां से हो जाएगा k plus 2, यहां से हो जाएगा k plus 3, डिनोमिनेटर में होगा 3. So now what we have to prove? We have to prove that this LHS is equal to RHS. हमें प्रूव करना होगा. अब हम LHS लिखते हैं. LHS is equal to what? ये है यहाँ पर LHS 1 into 2, 2 into 3 up to what? Up to k plus 1 k plus 2. So this is LHS. इस LHS को हम कैसे लिखते हैं? दिस इज इक्वल टू इसके पहले की एक टर्म आपको लिखना है. यह हो जाएगा 1 into 2, 2 into 3 चलता जाएगा. अब इसके पहले कौन सा टर्म आना है? तो k plus 1 के पहले कौन आएगा? k आएगा. k plus 2 के पहले कौन आएगा? k plus 1 आएगा. लास्ट में कौन होगा? यहाँ पर k plus 1 k plus 2 एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वी हैव टू रिप्लेस दिस. यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके ये जो टर्म लिखा है हमने k और k plus 1, इसको हम रिप्लेस करते हैं. और इसको रिप्लेस कहां से करते हैं? यूजिंग रिजल्ट 1. क्योंकि रिजल्ट 1 में देखिए LHS में क्या है? इट इज अप टू k into k plus 1. सो इट इज दिस. और इसका आंसर क्या होना है? k by 3. k plus 1 k plus 2. ठीक है. और प्लस इधर कौन है? k plus 1 k plus 2.